پاکستان اور قطر کا دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے امیر قطر کو جنیوا میں 9 جنوری کو ہونے والی کانفرنس کی مشترکہ میزبانی کی دعوت دی۔ سیلاب کی بحالی پر بھرپور معاونت پر شکریہ ادا کیا۔ تعمیر نو کے چیلنج سے نبرداشت نہ ہونے کے لیے عالمی برادری کی امداد کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع کی ترقی کے لیے میگا پروجیکٹس کا افتتاح اور سنگ بنیاد۔ چشمہ ہائیڈرل پاور اسٹیشن کے یونٹ 8 کی اپ گریڈیشن مکمل۔ چشمہ رائٹ بینک کینال لفٹ گریوٹی عبدالخیل اور بنکورائی میں 132 kV کے 2 گرڈ اسٹیشنز کا سنگ بنیاد۔ سی پیک کے مغربی روٹ پر یوک سگو یوب سیکشن پر کام کا آغاز۔ اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبوں سے علاقے میں خوشحالی آئے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف گھڑی چور نے ملک کو دنیا میں بدنام کیا۔ عمران نیازی کی غلط پالیسیز سے ملک کو معاشی اور خارجی محاذ پر بہت نقصان پہنچا۔ اتحادی حکومت نے مشکل فیصلوں سے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ عوام پریشان نہ ہو، ملک کو مشکل سے نکالیں گے۔ سیلاب متاثرین کی گھروں میں آباد کاری تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ وزارت اطلاعات کی زیر اہتمام نیشنل ایمیچر فلم فیسٹیول۔ مختلف کیٹیگریز میں بہترین شارٹ فلمیں بنانے والے نوجوانوں میں ایوارڈز تقسیم۔ وزیر اعظم کا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں نوجوان ہمارا مستقبل ہیں۔ نوجوانوں کی فلاح کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ محمد شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ جیسا لیڈر ویسے ہی اس کے ساتھی۔ عمران خان کو اقتدار کے علاوہ کچھ عزیز نہیں۔ تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی 50 کروڑ روپے ماہانہ تنخواہ لے رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی توڑنے میں تو رکاوٹ ہے۔ عمران خان خیبر پختونخوا اسمبلی کیوں نہیں توڑتے؟ دوسروں پر الزام تراشی سے پہلے عمران خان کو خود پر نظر ڈالنی چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف۔ عمران خان نے جھوٹ اور الزام تراشی کے سوا کچھ نہیں کیا۔ نیا پاکستان بنانے کے چکر میں ملک تباہ کر دیا۔ عمران نیازی صرف اسمبلیاں توڑنے کی دھمکیاں ہی دے سکتے ہیں۔ سیاسی قیادت پر ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق۔ سیاست پاکستان کے مختلف اکائیوں اور قوم کو اکٹھا کرنے کا نام ہے۔ عمران خان نفرت اور انتشار کی سیاست کر رہے ہیں۔ کوئی غیر آئینی کام نہیں کریں گے، سیاسی میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ مشیر امور کشمیر قمر زمان قائرہ۔ عوام کے سیاسی، سماجی اور معاشی حقوق کی علمبردار سابق وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 15ویں برسی کل عقیدت و احترام سے منائی جائے گی۔ گڑھی خدا بخش میں جلسے کا انعقاد کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت شرکت کرے گی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ بلاول بھٹو زرداری اور شہزادہ فیصل بن فرحان کے دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال۔ سعودی عرب کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو کے اقدامات میں تعاون کی یقین دہانی۔ دونوں وزراء خارجہ کی افغانستان میں صورتحال پر بھی گفتگو۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی سے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی کراچی میں ملاقات۔ مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہر قائد میں وفاق کے تعاون سے جاری ترقیاتی منصوبوں پر بھی بات چیت۔ حریت کانفرنس کی تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے بھارتی ہتھ کنڈوں کی شدید مذمت۔ بیرونی مداخلت کا الزام مسترد۔ پروپیگنڈے کا مقصد حق خود ارادیت کی جدوجہد کو بدنام کرنا ہے۔ قابض فوج کی مقبوضہ وادی میں جنگی جرائم سے توجہ ہٹانے کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ حریت قیادت۔ مسلمانوں کے خلاف کھلے عام منافرت اور تشدد کی پالیسی۔ بی جے پی حکومت راکشس سے بھی بدتر ہے۔ ترجمان ترنمول کانگریس۔ مودی حکومت ملک کو تباہی کی جانب دھکیل رہی ہے۔
रिटायर्ड भारतीय फौजी भी बोल उठे। रूस ने यूक्रेनी तैयारा मार गिराया। हेरसन के महाज पर लड़ाई। यूक्रेन को तारीकियों में धकेलने का रूसी ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे, सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। अफगान सूबे बदख्शां में बम हमला, पुलिस ऑफिसर समेत 3 अफराद हलाक। जिले पुलिस डायरेक्टर की गाड़ी को निशाना बनाया गया। खवातीन पर पाबंदी के बाद बैनुल अक़वामी इमदादी इदारों का अफगानिस्तान में प्रोग्राम मुअत्तल करने का ऐलान। अमरीका, कनाडा और जापान में बर्फानी तूफान की शिद्दत बरकरार। निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। अमरीका में 32 और जापान में 14 हलाकतें, सैकड़ों प्रवासी मंसूख। ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी। स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बास पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध के डेरे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ते हैं तफसील की जानिब। पाकिस्तान और कतर की क़यादत ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इरादा किया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर को जनीवा में 9 जनवरी को होने वाली कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेज़बानी की दावत दी। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली और तामीर नौ से मुतालिक प्लान पेश किया जाएगा। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सैलाब की तबाहकारी की वजह से दरपेश सूरत हाल की वजह से कतर की जानिब से भरपूर मुआवनत पर शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि तामीर नौ के चैलेंज से निबर्दा आज़मा होने के लिए कोशां है। वज़ीर आज़म ने बताया कि सूरत हाल से निमटने के लिए पाकिस्तान अपने महदूद वसाइल को बुरुएकार ला रहा है। इस मरहले पर बैनुल अक़वामी बिरादरी का ताउन बहुत ज़रूरी है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फीफा वर्ल्ड कप के कामयाब इनेकाद पर अमीर कतर को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस इवेंट ने खेलों की दुनिया में नए स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं। दोनों रहनुमाओं ने अहम आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क को दरपेश मुश्किलात को हल करने के अज़्म का इरादा करते हुए कहा है कि दहशतगर्दी के फितने को रियासती ताकत से कुचल देंगे। डेरा इस्माइल खान में तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि PTI हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से मुल्क को माशी और खारजा महाज पर बहुत नुकसान पहुंचा है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। डेरा इस्माइल खान में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुल्क में मोटरवेज का जाल बिछाया, लेकिन गुज़श्ता हुकूमत ने जारी तरक्याती मनसूबों को रोक कर मुल्क को नुकसान पहुँचाया। इमरान नियाज़ी को पाकिस्तान की तरक्की से कोई सरोकार नहीं था सिवाय अवाम को गुमराह करने के। इमरान नियाज़ी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत की बेहतर पॉलिसियों के बायस मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये उसका ख्वाब था जिसने पूरे पाकिस्तान को एक लड़ी में परो दिया है। पेशावर से लेकर कराची तक नवाज शरीफ का ख्वाब इंशाअल्लाह मुकम्मल होगा और शर्मिंदा ताबीर होगा। और यकीन करें कि ये जो मगरबी रूट है डेरा इस्माइल खान रोप तक, ये वो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का ये उसका हिस्सा है और जो कि 2017 में इसका पूरा प्लान बन चुका था। जो हुकूमत आई जिसने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया, उन्होंने इन मंसूबों को भी बिल्कुल सर्द खाने में डाल दिया। पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा था, किसी को शक नहीं था, लेकिन उस कुदरत को अल्लाह ताला को मंजूर था कि मखलूत हुकूमत की काविशों से दिवालिया होने से बचा लिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरान नियाज़ी की हुकूमत ने दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब किए, जिससे बैरूनी सरमायाकारी न होने के बायस मईशत तबाह हुई। दोस्त ममालिक के तहफ़ बेच दिए गए, जिससे पाकिस्तान की दुनिया के सामने सुबकी हुई। तोहफा अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मिलता है तो वो वज़ीर आज़म को नहीं, वो 22 करोड़ अवाम को मिलता है। आप खान साहबान को मिलता है,
पंजाब के अवाम को मिलता है, सिंध के अवाम को मिलता है, बलूचिस्तान के अवाम को मिलता है, कबायली अवाम को मिलता है, ये आपकी इज्जत है। और फिर उससे ऊपर खाना काबा का मॉडल हो, उस तोहफे को बेचकर पैसे जेब में डाल लेना, इससे बड़ी पाकिस्तान की हजीमत और इससे पाकिस्तान की बेतौकीरी नहीं हो सकती। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा अव्वलीन तरजीह है और इस हवाले से खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। वतन की बका के लिए कुर्बानियां देने वालों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। ये है जुर्रत, किरदार, ये है बहादुरी, ये है वो वलवला और ये है वो कमिटमेंट जो इन जवानों और अफसरों ने हमेशा दिखाई। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये वाक़यात की रोकथाम के लिए और इनको दोबारा ये जो सर उठा रहा है ये नासूर, इसको कुचलने के लिए इंशाअल्लाह हम मीटिंग कर रहे हैं और कोई हम दकीका फरोगजात नहीं करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। और तमाम वसाइल हम बुरुकार लाएंगे और इंशाअल्लाह मिलकर सूबाई हुकूमत और वफाक और इदारे मिलकर इंशाअल्लाह इसको हम अपना डील करेंगे और इसको मुकम्मल इसकी बेहतरी होगी ताकि पाकिस्तान के अंदर दोबारा अमन लौट के आए। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान कुदरती आफत का शिकार हुआ। सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें जारी हैं। इस हवाले से जनवरी में जेनेवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है, जिसमें पाकिस्तान अपना नुक्ता नज़र दुनिया के सामने रखेगा। वज़ीर आज़म ने डेरा इस्माइल खान डिवीजन के लिए मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबों, चश्मा हाइडल पावर स्टेशन के यूनिट 8 की रिफर्बिशमेंट, चश्मा राइट बैंक कैनाल लिफ्ट कम ग्रेविटी, चश्मा हाइडल पावर प्रोजेक्ट और टांकजाम डैम का संगे बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म ने अब्दुल खेल और बंद कुराई में 132 केवी के 2 ग्रिड स्टेशन का भी संगे बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यार्क सागो सेक्शन का संगे बुनियाद भी रखा, जो सी पैक के मगरबी रूट पर यार्क सागो योब मोटरवे का हिस्सा है। ये मोटरवे मजबूरी तौर पर 210 किलोमीटर तवील है। इस मौके पर पेजू से टांक रोड और डेरा इस्माइल खान बाईपास की बहाली समेत हालिया बारिशों से तबाह हाल सड़कों की बहाली के काम का इफ्तिताह भी किया गया। वज़ीर आज़म ने गोमल यूनिवर्सिटी पहाड़पुर कैंपस का संगे बुनियाद और बनू यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लकी मरवत कैंपस की अपग्रेडेशन का भी इफ्तिताह किया। DI खान जाते हुए दौरान प्रवास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इलाके की तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। DI खान में तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत माशी चैलेंजेस के बावजूद अवामी फलाह के लिए कौमी मंसूबों को मुकम्मल कर रही है। तफसील बताएंगे आगा मसूद खालिद। DI खान और जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मईशत की तबाही का एजेंडा लाने वाले मायूस हो चुके हैं। मुल्क की तरक्की के लिए खुद एतमादी से पॉलिसीज बनाना होंगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खित्ते का बावकार मुल्क बनने की भरपूर सलाहियत रखता है। हमारा ख्वाब ये है कि अपनी जोग्राफियाई और महल वक़ू की अहमियत के हवाले से उसको तरक्की का वही हक दिया जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पसमानदा इलाका पूरी दुनिया के लिए एक तिजारती सेंटर की हैसियत इख्तियार कर रहा है और अब ये तिजारती और इक़्तिसादी लिहाज से जनाब वज़ीर आज़म सिर्फ गुज़रगाह ही नहीं होगा, इंशाअल्लाह इसकी हैसियत अब एक मंजिलगाह की होगी। जनूबी इस्लाम में मेगा तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए विफाकी वजीर मवासलात व पोस्टल सर्विसेज मौलाना असद महमूद ने कहा कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने तरक्की के सफर का दोबारा आगाज वहीं से किया है जहां साबिक वजीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये सफर छोड़ा था। उन्होंने कहा कि माजी में तरक्की के सफर को रोक दिया गया था और आज ये सफर दोबारा शुरू होने जा रहा है। वजीर आज़म साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने तरक्की के उस सफर का आगाज जहां मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में रुक गया था, उसका सखर हैदराबाद मोटरवे के बाद आज सी पैक के मगरबी रूट का यारक रोप के एक सेक्शन का इफ्तिताह किया, उसके साथ दीगर मंसूबाजात का भी इफ्तिताह किया। वजीर आज़म के मशीर अमीर मकाम ने अपने खिताब में कहा कि इमरान खान ने इल्जामात की सियासत के अलावा कुछ नहीं किया। अवाम से 50 लाख घरों और 2 करोड़ नौकरियों का वादा करने वाला आज भी झूठ बोलकर अवाम को गुमराह कर रहा है। उनका कहना था कि मोटरवे इंफ्रास्ट्रक्चर का सेहरा मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के सर है।
ترقی کا سفر وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں جاری رہے گا۔ صوبے کے عوام کو ان سے جان چھوٹ جائے، اور میں ان کو کہتا ہوں کہ اس طرح جھوٹے شخص کا جو وہی 2 کروڑ نوکریوں اور گھروں سے لے کر آج تک اس کی کوئی وعدہ اس نے پورا نہیں کیا اور پورا دوسرے پر الزامات میں لگاتے رہے آج تک۔ اور دوسری طرف یہ میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اگر یہ سیلاب آتا اور یہ نالائق یہاں بیٹھتا تو اس پاکستان کی عوام کا کیا بننا تھا۔ جھوٹے شخص کی کہ اس پر مزید یقین کرنا، اعتماد کرنا مناسب نہیں ہے۔ رکن خیبر پختونخوا اسمبلی مولانا لطف الرحمان نے کہا کہ صوبے میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے موجودہ حکومت خاطر خواہ اقدامات کر رہی ہے، جس کا براہ راست فائدہ عوام کو ہو رہا ہے۔ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں سکولز اور کالجز کی منظوری، ہسپتالوں کو بہتر بنانے اور ان کی سہولیات کی فراہمی، میڈیکل کالج کی تعمیر، انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری بورڈ کا قیام، مفتی محمود سکول اینڈ کالج اور مفتی محمود لائبریری کا قیام، گھر گھر سوئی گیس کنیکشن کی فراہمی، بے روزگاروں کو روزگار کی فراہمی، یہ سب منصوبے پائے تکمیل تک پہنچے ہیں اور علاقے کے عوام کو ان سے مستفید ہو رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل سے عوام کا معیار زندگی بہتر ہوگا اور مواصلاتی رابطوں کے قیام سے تجارتی سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہوگا۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک کا مستقبل نوجوان نسل کے ہاتھ میں ہے، نوجوان اپنی توانائیاں ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے استعمال کریں، حکومت ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں تمام ممکن وسائل فراہم کرے گی۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں نیشنل امیچر شارٹ فلم فیسٹیول میں ایوارڈ دینے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے فلم سازی کے شعبے میں نیو یارک فلم اکیڈمی اور آسٹریلیا کے لیے 50 وظائف دینے کا بھی اعلان کیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں اسد یار خان۔ سمندروں سے پہاڑوں تک کے موضوع پر نیشنل امیچور شارٹ فلم فیسٹیول 2022 کا مقصد پاکستان کی تہذیب و ثقافت اور مثبت تشخص کو اجاگر کرنے کے ساتھ نوجوانوں کو فلم سازی میں اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے نیشنل امیچور شارٹ فلم فیسٹیول کے انعقاد کو احسن اقدام قرار دیا اور کہا کہ نوجوانوں کی طرف سے بنائی گئی دستاویزی فلموں کا معیار قابل تعریف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے پاکستان کا مثبت تشخص دنیا میں اجاگر کرنے میں مدد ملے گی۔ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس میں پاکستان کو صحیح معنوں میں اقبال اور قائد کا پاکستان بنانے میں آپ میں بڑی صلاحیت ہے، بڑا ولولہ ہے اور بہت جذبہ ہے۔ آج کی یہ جو تصویر کشی، اس سے اور بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ آپ نے اتنی جوان سالی میں، آپ نوجوان ہیں، بچے اور بچیاں، کس طرح آپ نے یہ شارٹ فلم بنائی اور پاکستان کا جو حسن ہے، پاکستان کی جو تاریخ ہے، پاکستان کا جو قدیم ورثہ ہے، پہاڑ، سمندر، دریا اور جھیلیں، کس خوبصورتی سے آپ نے اس کی عکاسی کی اور دنیا کو دکھایا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ دنیا بھر میں فنون لطیفہ، فلمز اور ڈراموں کے ذریعے ثقافت اور روایات کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں فلمی صنعت اور ڈرامے کے فروغ کے لیے حکومت تمام تر وسائل بروئے کار لائے گی۔ پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو اس کی کنجی ہماری نوجوان نسل کے ہاتھ میں ہے، اور یہ میں لفاظی سے کام نہیں لے رہا، میں دل کی گہرائیوں سے یہ بات کر رہا ہوں، اور اس کے لیے حکومت پاکستان تمام وسائل آپ کے قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ مجھے یہ پورا یقین ہے کہ آپ اپنی توانائیاں اور ان وسائل کو پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے استعمال کریں گے۔ وزیر اعظم نے نیو یارک فلم اکیڈمی آسٹریلیا کے لیے 50 اسکالرشپس کا اعلان کیا، جو 25 بچوں اور 25 بچیوں کو دی جائے گی۔ اس موقع پر انہوں نے ایک کمیٹی بنانے کا بھی اعلان کیا جو ملک بھر سے نوجوان ٹیلنٹ تلاش کرے گی۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا کہ دنیا میں اسکریننگ کسی بھی ملک کی ثقافت اور روایات کے فروغ کے لیے اہم ہے۔ کئی دہائیوں سے پاکستان کی فلم انڈسٹری اور ڈرامہ زوال کا شکار رہی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف فلم انڈسٹری اور فنون لطیفہ کے فروغ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ حکومت اس حوالے سے اقدامات کر رہی ہے۔ فنکاروں کے لیے آرٹسٹ فنڈ بھی قائم کیا جا رہا ہے۔ یہ جو
initiative है, the National Film Festival initiative. I would like to thank the ISPR also for access to different locations and facilitating the young students in the filmmaking with the Ministry of Information. I would like to thank also. It's fully funded scholarship, and I would like to thank Dubai Ports for that also, for fully sponsoring it and encouraging the young students to go and participate in the filmmaking in New York Film Academy in Australia. I would also like to share here that we through Higher Education Commission, we are launching filmmaking curriculum in the universities across Pakistan. न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप पर 15 तालिब इल्मों को स्पॉन्सर करने वाली कंपनी दुबई पोर्ट के सुल्तान अहमद बिन सलाइम ने कहा कि पाकिस्तान बरादर मुल्क है और पाकिस्तान की नौजवान नस्ल में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। सेक्रेटरी इतलात शाहिरा शाहिद ने कहा कि फिल्म साजी के जरिए पाकिस्तान के मस्बत तशख्खुस को उजागर करने पर तवज्जो दी जा रही है। नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का मकसद भी पाकिस्तान की तहजीब व सकाफत और खूबसूरती को उजागर करना है। वज़ीर आज़म ने अंडर ग्रेड कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी और मोबाइल फिल्म कैटेगरी में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले नौजवानों में अवार्ड्स तकसीम किए। मुल्क भर से 90 जामियात की तरफ से 1200 एंट्रीज मिली। मारूफ प्रोड्यूसर्स और फिल्म मेकर्स पर मुश्तमिल ज्यूरी ने तमाम शॉर्ट फिल्मों का जायजा लिया, जिसकी बुनियाद पर हर कैटेगरी की 6 बेहतरीन शॉर्ट फिल्में अवार्ड के लिए मुंतखब की गईं। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मुस्लिम लीग के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद रफीक की 50वीं बरसी पर लाहौर में सेमिनार का इनेकाद किया गया। वफाकी वज़रा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, सरदार अय्याज सादिक और अहम शख्सियात ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और पार्लिमानी रवायात के तसलसल से ही मुल्क आगे बढ़ेगा। तफसील बताएंगी शुमाइला शब्बीर। राह जमहूरियत में जामे शहादत नोश करने वाले रफीक मिल्लत ख्वाजा मोहम्मद रफीक शहीद के 50वें यौम शहादत पर सेमिनार से खिताब करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान दौलत और इक्तदार की हवस में मुब्तला है। वो ना तो मुल्क और कौम से मुखलिस है और ना ही अपने कारकुनों से। उन्होंने कहा कि इमरान खान एक मोहसिन कुश इंसान है। जिस शख्स ने उसको खिलाया है, जिस हाथ ने उसको खिलाया, उस हाथ को उसने काटा है। मैंने कल सियालकोट में कहा था कि इन्हें खीर सारा मुद्दा जड़ा है मुर्शद पा देना है कि मेरे को गलती हुई सी, मैं ब्याह क्यों किया है। इस शख्स के साथ सिर्फ इस शख्स की वफादारी दौलत के साथ और इक़्तिदार की हवस के साथ है, उसके अलावा किसी के साथ नहीं। वजीर दिफा ने कहा कि इमरान खान ने अगर इस्तीफे देने हैं तो KPK से मुस्ताफी हूँ। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क को दिवालिया होने के मकाम तक पहुँचा दिया है। इस नहज पर खड़े हैं कि मुआशी अबतरी है और दहशत गर्दी दोबारा सर उठा रही है। उन्होंने कहा कि इमरान खान अब जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं। बिल्कुल दिवालियापन के किनारे पे छोड़ गया इमरान खान। नारे लगाया करता था और खोखले नारे थे सारे। पाकिस्तान की सियासी क़यादतों के साथ आखिर क्या मसला है? ये क्यों अपनी जमातों को मुनज़्ज़म नहीं करते? आप ग्रास रूट लेवल पे जाके क्यों अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को ऑर्गेनाइज नहीं करते? विफाकी वजीर अयाज सादिक ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क को माशी बहरानों के सिवा कुछ नहीं दिया। शहबाज शरीफ ने जब मिसाक मईशत पर बात की तो इमरान खान ने इसे मजाक में उड़ा दिया। 3000 अरब का कर्जा 1947 से लेके 2018 तक पाकिस्तान ने लिया और 2018 जब PTI की हुकूमत आई और 10 अप्रैल 2022 तक 44 महीने में उन्होंने उस 30,000 अरब के कर्जे को 60,000 अरब कर दिया। सेमिनार से राना मशहूद अहमद खान, खालिद मकबूल, साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर, सरदार अतीक, हामिद मीर, ज़हीम कादरी और दीगर ने भी खिताब किया। इस मौके पर सबा सादिक ने सेमिनार में करारदाद पेश की, जिसमें कहा गया कि सियासी अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह बार बार शब खून मारना है। करारदाद में कहा गया कि मिसाके जमहूरियत के साथ साथ मिसाके मईशत मुल्क की सबसे बड़ी जरूरत है, ताकि तमाम जमहूरी कुव्वतें मजबूत हों, ताकि मुल्क मुआशी टाइगर बन सके। ख्वाजा सलमान रफीक ने सेमिनार में करारदाद पेश की, जिसमें कहा गया कि कश्मीर हमारी शहरग है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर फिलफौर अमल किया जाए। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मुशीर उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा कहते हैं कि सियासत मुल्क की मुख्तलिफ इकाइयों और कौम को इकट्ठा करने का नाम है। इमरान खान नफरत और इंतशार की सियासत कर रहे हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम कोई गैर आईनी काम नहीं करेंगे, सियासी मैदान में डट कर मुकाबला करेंगे। तफसील जानते हैं आसिम रिजवान से।
اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران وزیر اعظم کے مشیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان قمر زمان کائرہ کا کہنا تھا کہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں پاکستان کو سفارتی تنہائی کا شکار کیا۔ قمر زمان کائرہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری غیر ملکی سرکاری دوروں کا خرچ اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں۔ خان صاحب، آپ کے دور میں پاکستان کا سفارتی انہدام ہو رہا تھا، آپ پاکستان کو بربادی کی طرف لے کے گئے تھے، حتیٰ کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نے اور ہندوستانی حکومت نے کشمیر کے اوپر نئی قانون سازی کر کے اس کو اپنا پارٹ ڈکلیئر کر لیا، اس کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں کر لیں، اور خان صاحب کو دنیا کے کسی ملک کی طرف سے سپورٹ نہیں ملی۔ بلاول صاحب نے جب سے خارجہ امور کا محاذ سنبھالا ہے، وہ جی ایس پی پلس ہو، وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوں، وہ یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ تعلقات ہوں، وہ آئی ایم ایف، وہ ورلڈ بینک، فلڈز کے اندر پاکستان کو جس طرح کی فعال سفارتکاری کی ضرورت تھی، ان سارے معاملات میں انہوں نے بھرپور طریقے سے پاکستان کے موقف کو سپورٹ کیا ہے۔ قمر زمان کائرہ نے پنجاب کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم جمہوری نظام کا تسلسل چاہتے ہیں۔ گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا، آج پی ٹی آئی بھی یہی کہہ رہی ہے، پھر ہنگامہ کیوں؟ جمہوریت ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے۔ ہم یہ بات آج نہیں کہہ رہے، جب عمران خان صاحب حکومت میں آئے تھے نہ خان صاحب نے اس وقت اس کو سنا، اس کے اوپر بھی گالیاں دی، پھر جب وہ ہم حکومت میں آئے تب بھی ہم نے کہا کہ آئیے چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں، آئیے پاکستان کا بیٹھ کے معاملات کا حل نکالنا چاہتے ہیں۔ اب جب انہوں نے یہ مطالبہ شروع کیا اور شرط رکھی کہ پہلے الیکشن کی ڈیٹ دو پھر بیٹھوں گا، حضور والا شرطیں رکھ کے ڈائیلاگ نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ نے کہا کہ پی ٹی آئی جمہوری اقدار اپنائے، ہم کسی غیر آئینی اقدام اور انتقامی کارروائی پر یقین نہیں رکھتے، تاہم سیاسی میدان میں عمران خان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا۔ عاصم رضوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی 15ویں برسی کل عقیدت و احترام سے منائی جائے گی۔ اس موقع پر گڑھی خدا بخش میں جلسے کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت شرکت کرے گی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی جد و جہد کے بارے میں دیکھتے ہیں سہیل جمالی کی یہ رپورٹ۔ ڈھونڈا گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب۔ مملکت خداداد پاکستان کی سیاست میں جن رہنماؤں نے دیر پا اثرات چھوڑے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نام ان میں ایک درخشندہ ستارے کے مانند ہے۔ بر صغیر کی روایتی سیاست میں سیاستدانوں کے لیے اسیری، نظر بندی، قید و بند کی صعوبتیں، جلا وطنی اور اظہار رائے پر پابندی نئی بات نہیں۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ان سیاستدانوں میں شامل ہیں جو ان تمام امتحانات میں سرخرو ٹھہری اور خلق خدا کے دلوں پر اشروں تک راج کیا۔ خطابت میں شعلہ بیانی، عوام کے حقوق کے لیے جد و جہد میں استقامت اور وقت کے آمروں کے خلاف جرت و دلیری انہیں اپنے والد شہید ذوالفقار علی بھٹو سے ورثے میں ملی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کا 30 سالہ سیاسی کیریئر جہد مسلسل سے عبارت ہے۔ انہوں نے 1980 اور 20ویں صدی کی پہلی دہائی میں آمریت کے خلاف رائے عامہ کو منظم کیا اور دونوں مرتبہ ان کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کو عوام نے اقتدار کے لیے منتخب کیا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی نہ صرف یہ کہ پاکستان میں جو سیاسی کردار ہے وہ بہت اہم ہے، بلکہ دنیا بھر میں جو بڑے لیڈرز ہیں ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جو دنیا کی بڑی خواتین لیڈرز ہیں ان میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا شمار ہوتا ہے۔ عالم اسلام کی پہلی منتخب خاتون وزیر اعظم کا اعزاز پانے والی محترمہ بے نظیر بھٹو بحالی جمہوریت، قانون کی بالادستی، عوام کے حق حکمرانی اور انتہا پسندی کے خلاف ایک توانا آواز تھیں۔ آمریت کے خلاف جد و جہد کی علامت شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک خاتون ہونے کے ناطے مصائب، خطرات اور موت کی دھمکیوں کے باوجود جس طرح حالات کا مردانہ وار مقابلہ کیا، وہ ہر سیاسی کارکن اور رہنما کے لیے مشعل راہ ہے۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے سعودی منصب شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ٹیلی فونک رابطے میں دونوں وزرائے خارجہ نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان برادرانہ تعلقات کا اعادہ کرتے ہوئے تمام شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے عزم کا اظہار کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے سعودی ہم منصب کو 9 جنوری 2023 کو جنیوا میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ہونے والی کانفرنس ماحولیاتی تبدیلیوں سے محفوظ پاکستان کے بارے میں آگاہ کیا۔ فیصل بن فرحان نے سعودی عرب کی جانب سے پاکستان میں سیلاب کے بعد بحالی اور تعمیر نو کے لیے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ٹیلی فونک رابطے میں دونوں وزرائے خارجہ نے افغانستان میں حالیہ صورتحال پر بھی گفتگو کی۔ دونوں وزرائے خارجہ نے افغانستان میں خواتین کے حقوق اور زندگی کے تمام شعبوں میں برابری کی نمائندگی کی ضرورت پر زور دیا۔
वज़राए ख़ारजा ने अफगानिस्तान में सलामती, इस्तेहकाम और अमन के लिए हिमायत और अफगान अवाम के खुशहाल पायदार मुस्तकबिल के लिए आलमी रवाबित की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसाक डार की ज़ेर सदारत इजलास में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से मुतालिक उमूर और मुख्तलिफ इदारों से वाजिबुल अदा रकूम से आगाह किया गया। इजलास को बताया गया कि 447 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ अदालतों में 3194 दरखास्तें दायर की गई हैं। इजलास में अदालत के फैसलों और हुक्म इम्तनाई का जायजा भी लिया गया। वज़ीर ख़जाना ने सेस वाजबात की अदम वसूली पर शदीद तशवीश का इजहार किया और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस की मद में नादहिंदगान से एक पाई वसूल करने के हुकूमत के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में सर्विसेज इंटरनेशनल होटल की निजकारी से मुतालिक मामले को कानून और इंसाफ डिवीजन को नजरसानी के लिए भेज दिया गया। कमेटी ने SME बैंक लिमिटेड को निजकारी प्रोग्राम से डीलिस्ट करने का भी फैसला किया। कमेटी ने PIA के मलकियती रोसेवेले होटल न्यूयॉर्क की निजकारी के हवाले से अपने 2 जुलाई के फैसले को बरकरार रखते हुए निजकारी कमीशन को मालियाती मुशीर की तकर्री जल्द करने की हिदायत की। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तिजारत और इक़्तिसादी ताउन में इजाफे के लिए 9 समझौतों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। तफसील बताएंगे राहील अंसार। इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में वफाकी वज़ीर तजारत सैयद नवीद कमर और उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म ने मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए। मुफाहमत की याददाश्तों के तहत पाक उज़्बेक तरजीही तजारती मुआहदे का निफाज, ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे पर अमल दरामद, ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल का हल, अफगानिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात, अफगानिस्तान के रास्ते ट्रांजिट ट्रेड, कराची और ग्वादर में उज़्बेक कार्गो के लिए ऑफ डॉक टर्मिनल और तजारती नुमाइशों के इनकाद समेत मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताल्लुकात का फरोग शामिल है। मीडिया से बातें करते हुए वज़ीर तजारत सैयद नवीद कमर ने कहा कि पाक उज़्बेक तरजीही तजारती मुआहदे पर 1 फरवरी से अमल दरामद हो जाएगा। एक जॉइंट फोरम भी हम प्रपोज कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान की जॉइंट मीटिंग हो ताकि उसमें ये जो बाकी थोड़े बहुत इसमें मसाइल आते हैं वो तमाम के तमाम उसमें क्लियर हो जाएं। इकोनॉमिक जोन जो उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है उसमें हमारे जो बिजनेसमैन हैं और हमारी जो गुड्स हैं वो उसमें इंटीग्रेट हो के ताकि एक ये जॉइंट हमारा वेंचर उधर हो जाए। ये तमाम की तमाम चीज़ें मिलके पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का जो तजारत है और एक हद तक इन्वेस्टमेंट है उसको फ़रोग़ देंगी। इससे पहले दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात में 2 तरफा तजारत और अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर तजारत सैयद नवीद कमर और उज़्बेक नायब वज़ीर आज़म के दरमियान यादगारी शील्ड्स का भी तबादला किया गया। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि टैक्स चोरी बड़ी बदउनवानी है। टैक्स दायरेकार में इजाफे के लिए टेक्नोलॉजी का फरोग नागुज़ीर है। उन्होंने ये बात कराची में सेमिनार से खिताब करते हुए कही। तफसील जानते हैं नौरीन आसिफ से। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि टैक्स की शरह में इजाफे के लिए अवामुन्नास की आगाही जरूरी है। कवानीन पर अमल दरामद से ही मुल्क में बेहतरी लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि अनारकी के खात्मे, इंसाफ की बालादस्ती के लिए जमहूरी कुव्वतें काम करती हैं और हमारी कोशिश है कि आम आदमी तक इंसाफ और रिलीफ पहुँचे। उन्होंने कहा कि वफाकी टैक्स मोहतसिब के शुक्रगुजार हैं कि वो लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं। हमारे मोहतसिबीन की कोशिश ये है कि लोगों तक ये आम फहम कैफियत पहुँचे और FBR के लोगों को भी और जो इदारे हैं जिनके सिलसिले में ये मदद कर रहे हैं उनको भी एहसास हो कि ये मदद कर रहे हैं। These muhtasibin, mashallah, are not against the institutions, but are trying to do some problem solving ताकि आम आदमी की पहुंच हो जाए। मेरी और आपकी मिलकर ये कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर एक डिज़र्विंग कैफियत पैदा की जाए कि इंसाफ को आम करें।
तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी टैक्स मोहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद जान ने कहा कि वफाकी टैक्स मोहतसिब इदारे को आसानियां बांटने वाला इदारा बना दिया है। कोशिश है कि कायदे-ए-आज़म के असूलों पर कारबंद रहते हुए मुल्क और यहाँ के लोगों के लिए काम करें और अपने फराइज भरपूर तरीके से सरअंजाम दें। इस मौके पर वफाकी टैक्स मोहतसिब की जानिब से सुजुकी की कार बुकिंग के वक्त से डिलीवरी तक सेल्स टैक्स में कमी की रकूम की वापसी की शिकायत का इजाला करते हुए नुमाइंदों में चेक्स तकसीम किए गए। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कराची में मुलाकात की और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने कराची में विफाक के ताउन से जारी तरक्याती मंसूबों पर भी बातचीत की। गवर्नर सिंध ने कहा कि सूबे की तरक्की में विफाक भरपूर ताउन फराहम कर रहा है। कराची को दोबारा रोशनियों का शहर बनाने के लिए तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और उनकी टीम की जानिब से सेनेट इलेक्शन और आम इंतखाबात के दौरान पीटीआई की मुबैना मदद के हवाले से इनसे मंसूब बयान का नोटिस लिया है। ईवान सदर की जानिब से जारी एलामिया में इस खबर को खुद साख्ता और मनगढ़ंत करार देते हुए कहा गया है कि सदर मुमलिकत के बयान को सयाको सबाक से हटकर पेश किया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुख्तलिफ वाक़यात में शहीद होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों के वरसा को टेलीफोन किया और कौम के बहादुर सपूतों को खराज अकीदत पेश किया। सदर ममलिकत ने पाक फौज के शहीद एहलकारों नायब सूबेदार कासिम खान, हवालदार मोहम्मद आमिर, हवालदार परविश खान, हवालदार मोहम्मद चंगेज चुगताई और सिपाही नासिर खान के लवाहिकीन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पूरी कौम दिफाए वतन का मुकद्दस फरीज़ा अंजाम देते हुए जाम शहादत नोश करने वालों की मकरूज है। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला शुहदा के दर्जात बुलंद फरमाए। कोहलू में शहीद होने वाले कैप्टन मोहम्मद फहद खान को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। कैप्टन मोहम्मद फहद खान शहीद की नमाज जनाजा आर्मी कब्रिस्तान रावलपिंडी में अदा की गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और बड़ी तादाद में सीनियर सिविल और फौजी अफसरों, जवानों और शहीद के अजीज़ व अकारिब ने शिरकत की। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत रहनुमाओं और आज़ादी पसंद तंजीमों ने एक भारतीय फौजी जनरल की जानिब से कंट्रोल लाइन के करीब हथियारों की बरामदगी के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडे का मकसद कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को बदनाम करना है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक सीनियर हुर्रियत रहनुमा नईम अहमद खान ने नई दिल्ली के बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल से एक पैगाम में कहा है कि भारत कश्मीरियों की जिद्दोजहद और पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर बदनाम करने के लिए वक्तन फवक्तन इस तरह के शोशे छोड़ता रहता है। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, मुस्लिम लीग और पीपल्स लीग ने अपने बयानात में इन इल्जामात को भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर में अपने जराइम छुपाने और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की तरफ से जमा कराए गए दोसिये का तोड़ करने की एक नाकाम कोशिश करार दिया है। बारामूला के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रईस भट्ट ने श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भारतीय फौजी जनरल के इस दावे की तरदीद करते हुए कहा है कि साल भर के दौरान कंट्रोल लाइन के आर पार कोई नकलो हरकत नहीं हुई। कांग्रेस की मकबूजा कश्मीर शाख के साबिक सदर गुलाम अहमद मीर ने जिला इस्लामाबाद के इलाके नौगाम में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए मोदी हुकूमत पर जोर दिया कि वो कश्मीरियों को उनके हुकूक दे और इनके साथ भारतीय पार्लियामेंट में किए गए वादों को पूरा करे। भारत के रिटायर्ड फौजियों ने मोदी हुकूमत का पर्दाफाश कर दिया। रिटायर्ड फौजियों का कहना है कि मोदी हुकूमत मुल्क को तबाही की जानिब धकेल रही है। देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। India is now extremely vulnerable. The country must be kept in the picture about what is actually going on. तृणमूल कांग्रेस के तर्जुमान साकेत गोखले ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत को बीमार राक्षस कहना छोटी बात होगी क्योंकि ये इससे भी बदतर है। उन्होंने कहा कि मोदी के पैरोकार मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम मुनाफरत और तशद्दुद की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। एक अदाकारा की खुदकुशी पर अफसोस के बजाय मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल करना शर्मनाक अमल है। ऐसी हरकतें बीजेपी के जालिमाना दौर में आम बात हैं जिन पर आलमी इंसानी हकूक की तंजीमों को सख्त नोटिस लेना होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के बहरी जहाज ने खुसूसी इकोनॉमिक जोन में गश्त के दौरान एक भारतीय कश्ती पकड़ ली है और उसमें सवार 6 माहीगीरों को गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय कश्ती गैर कानूनी शिकार में मसरूफ थी। कश्ती को पाकिस्तानी कानून और समुद्र के कानून के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। भारतीय माहीगीरों को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए कराची पहुंचा दिया गया है।
नेपाल में साबिक माओ नवाज रहनुमा पुष्पा कमल दहल मुल्क के नए वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पुष्पा कमल दहल प्रचंडा को नेपाल की वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इलाकाई शराकतदारों के तौर पर पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात हैं। उनका कहना था कि नेपाल के साथ दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और इलाकाई ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने के ख़्वाहां हैं। दफ्तर खारिजा ने वाज़ेह किया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तानी शहरियों को वीज़े के इजरा पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने एक बयान में कहा कि यूएई की जानिब से पाकिस्तान के मखसूस शहरों से वीज़ों के इजरा पर पाबंदी से मुतालिक गर्दिश करने वाली खबरें दुरुस्त नहीं हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने लाहौर प्रेस क्लब के नौमुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि हुकूमत इजहार राय की आज़ादी पर कामिल यकीन रखती है। वज़ीर इत्तलात ने सदर आज़म चौधरी, सेक्रेटरी अब्दुल मजीद साजिद और दीगर ओहदेदारों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि लाहौर प्रेस क्लब के नौमुंतखब ओहदेदार सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत की तर्जुमान फरा अजीम शाह ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि रेक्यूडिक पाकिस्तान और बलूचिस्तान के लिए एक इनकलाबी मंसूबा है। जनवरी में इसका बाकायदा आगाज हो जाएगा और अरबों डॉलर की सरमायाकारी मुल्क में आएगी। उन्होंने कहा कि सूबे में अमन और अमान बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाए जाएंगे। शरपसंद अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। चेयरमैन एनडीए में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की सदारत में इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसमें एनआईएच और एनसीओसी हुकाम ने मुल्क में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इजलास को बताया गया कि पाकिस्तान में कोरोना का कोई नया वेरिएंट सामने नहीं आया। मुतालिका इदारे सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान में 90% आबादी की वैक्सीनेशन हो चुकी है। चेयरमैन एनडीएमए ने हिदायत की कि वायरस से मुतालिक तरमीम शुदा एडवाइजरी जारी की जाए और आलमी सतह पर बदलती हुई सूरत हाल के तनाजुर में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अस्पतालों में जरूरी इकदामात यकीनी बनाए जाएं। पाकिस्तान बैतुल माल ने यतीम बच्चों को तालीम की हुसूल में मुआवनत के लिए सपोर्ट प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। तफसील बता रहे हैं नवीद हयात। पाकिस्तान बैतुल माल की जानिब से बेवा खवातीन और यतीम बच्चों की कफालत और तालीम के सिलसिले में यतीम और बेवा सपोर्ट प्रोग्राम का आगाज हो गया है। इस प्रोग्राम के तहत एक यतीम बच्चे के लिए 6,000 जबकि एक से ज्यादा यतीम बच्चों की सूरत में माहाना 10,000 रुपए अदा किए जाएंगे। इस स्कीम में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इन रोल खवातीन को चुना गया है। तकरीब से खिताब करते हुए पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा कि महंगाई और गुर्बत के दौर में बच्चों की तालीम पर तवज्जो देना बहुत जरूरी है। इस प्रोग्राम के जरिए खवातीन को खुद मुख्तार बनाएंगे। एमडी बैतुल माल आमिर फिदा पराचा ने कहा कि हमारा मकसद पाकिस्तान की गरीब आवाम की खिदमत करना है। बेवा खवातीन का कहना है कि इस तर्ज के प्रोग्राम से उनकी खासी मदद होगी और उनके बच्चे तालीम के जेवर से भी आरास्ता हो जाएंगे। बैतुल माल हमारे बच्चों को चेक देता है तो उससे हमारे बच्चों के तालीमी अखराजात पूरे होते हैं। मजबूरी सिर्फ है, इनका बाप नहीं है तो मुझे एक घर में काम करना पड़ता है और उससे मेरी आमदनी पूरी नहीं होती। पाकिस्तान बैतुल माल के मुताबिक बेवा खवातीन को निजी बैंक के जरिए बआसानी रकम फ्राहम की जाएगी ताकि किसी भी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि मौसम सरमा आते ही मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से सयाह कोयटा का रुख करते हैं और सर्द मौसम से खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तफसीलात जानते हैं सरफराज शेख की इस रिपोर्ट में। सूबाए दारुल हुकूमत कोयटा समेत बलोचिस्तान के दिगर अजला में सर्दी की शदीद लहर जारी है। सर्द मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मुल्क के दिगर इलाकों से सयाहों ने कोयटा का रुख कर लिया है। सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा हो गया है, जबकि ड्राई फ्रूट्स की दुकानों और चाय खानों में रश काबिले दीद है। कोयटा के इस विंटर को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। यहाँ ड्राई फ्रूट, पिस्ता, चलगोज़ा वगैरह बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और मौसम ज़रा ठंडा है। सुबह गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, बस ये बात। कराची से आई हूँ। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। दिन को तो थोड़ा बहुत मौसम अच्छा है लेकिन रात को शदीद सर्दी होती। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, जबकि बालाई अजला में शदीद सर्द और मतला अब्र आलूद रहने का इम्कान है। हमको हैदराबाद से है, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, हमको एंजॉय कर। वादी ज़ियारत में दर्जा हरारत -9, कल्लात में -6,
जबकि कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड किया गया। सर्द मौसम आते ही वादी कोयटा का मंजर यकसर बदल जाता है। लोग सर्दी से एहतियात के साथ इस मौसम से लुत्फानंदोज भी होते हैं। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। और बल्तिस्तान डिवीजन में शदीद सर्दी की लहर जारी है, जहां स्कर्दू समेत नशेबी इलाकों में दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सर्दी के बायस लोगों के मामूलाते जिंदगी शदीद मुतासिर हैं। रिपोर्ट करेंगे कासिम नसीम। बल्तिस्तान डिवीजन इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है। स्कर्दो शहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत में रोज बरोज कमी वाक़ हो रही है। आज स्कर्दो शहर में दिन का कम से कम दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि बालाई इलाकों में दर्जा हरारत -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की इतलात हैं। इस शदीद सर्दी में लोग अपने घरों को गर्म रखने के लिए रिवायती हीटर बुखारी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लकड़ी बतौर ईंधन इस्तेमाल होती है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाइस इलाके में लकड़ी की मांग में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है और शहर में जा बजा लकड़ी की मंडियां खुली हैं, जहां मुख्तलिफ किस्म की लकड़ियां फरोख्त हो रही हैं। इन मंडियों में लोगों की सहूलत के लिए लकड़ी को तोड़कर बुखारी के साइज के बराबर तैयार करके रखते हैं। हम घरों को गर्म रखने के लिए LPG यूज कर रहे थे। आज सर्दी में अचानक इजाफे की वजह से घर वालों ने लकड़ी लेने भेजा है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से गिलगित बल्तिस्तान और ख़ासतौर पर बल्तिस्तान बहुत बड़े तगय्युर से गुजर रहा है, तो बहुत ज़्यादा सर्दी है। इसके लिए लकड़ी खरीदने के लिए यहाँ आए, लेकिन लकड़ी की क़ुव्वत ख़रीद भी हमारे हाथों से निकल गई है। सुस्की चलाता हूँ सर। आज सुबह 8 बजे से मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। रेत ज़्यादा होने की वजह से वो लोग पूछ के चले जाते हैं, तो हमारा भी काम बहुत कम हो गया सर पहले की निस्बत। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ ईंधन के लिए लकड़ी के हुसूल में लोगों की मुश्किलात भी बढ़ रही हैं। कासिम नसीम, PTV न्यूज़, करदो। मौसम का हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। उर्दू अदब के माहे मुनीर नियाजी को हमसे बिछड़े 16 बरस हो गए हैं। उनकी अदबी खिदमात के बारे में देखते हैं मोहम्मद शकील मलिक की ये खुसूसी रिपोर्ट। मोहब्बत, एहसास और अपनायत से लबरेज जज्बात के तर्जुमान मुनीर नियाजी मुनफरद मिजाज के शायर थे, जिनकी शायरी ने हर दौर में अपना जादू जगाया। वो 9 अप्रैल 1928 को मशरकी पंजाब के शहर होशियारपुर में पैदा हुए। तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान आ गए और साहिवाल को अपना मस्कन बनाया। शेर सुखन के उफक पर नमूदार हुए तो मुनफरद उसलूब से दुनिया अदब को मुनव्वर कर दिया। मुनीर नियाजी ने जिन एहसासात को अपनी शायरी में ढाला, उनका ताल्लुक किसी मावराई दुनिया से नहीं बल्कि जिंदगी की हकीकतों से है। उन्होंने नई फजा, नए लहजे और नए अंदाज से शेरी रिवायत में जिद्दत पैदा की और अपने हम असर शायरों में मुमताज ठहरे। उनकी शायरी लतीफ जज्बात का इजहार है, जिसमें माजी के गुमशुदा मनाजिर और रिश्तों से इनहराफ का कर्ब नुमाया है। हमेशा देर कर देता हूँ मैं, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। वो वुसअत के कायल हैं, इसीलिए